Namaskar and welcome to Doctor Speak once again. And today is the first day actually of unlock, and so people are coming out. It is important that people come out as well because we cannot keep our economy in cold storage for such a long time. Life has to move on. We have to live with this virus. We have to learn to deal with the situation. But that doesn't mean we have to throw caution to the winds. We have to work and live with caution, and all those situations that we are going to be dealing with in daily life because of the unlockdown actually have a medical component in it. And it's best to ask the doctors how to deal with a situation like that, how to be safe. And for that, we have this program. And we'll have our numbers come up on the screen in just a minute. And you can contact those numbers and we will put you in touch with a quality panel of doctors, and they will be able to answer your questions. I'm Mark, and with me is Jyotika. थैंक यू मार्क। नमस्कार। तो डॉक्टर स्पीक में हम कोशिश करते हैं कि आपके कोविड-19 से जुड़े हुए जितने भी तमाम सवालात हैं वो आप हमारे पैनल ऑफ डॉक्टर्स के साथ पूछ सकें, शेयर कर सकें। आपके जितने भी जो भी भ्रांतियां हैं, भ्रम हैं, वो दूर कर सकते हैं इस कोविड-19 को लेकर। हालांकि अनलॉक 1 के तहत आज से देश भर में मार्क धार्मिक स्थल खुल गए हैं, होटल रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, लेकिन कुछ राज्यों को हालांकि छूट है कि वो अपने तरीके से इस फैसले के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि अपने एरियाज़ में जिस तरह की सिचुएशन है उसे आंकते हुए वो इस फैसले के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे लिए अनलॉक हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो SOPs हैं तमाम, उनको फॉलो करके आगे बढ़ें, क्योंकि ये हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं। कोई अगर आपको कहे कि आपको रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, सख्ती से कहे, उससे पहले आप अगर ख़ुद उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और आपके साथ साथ आपके नियर एंड डियर वंस भी स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। और यही कोशिश है, क्योंकि अब हमें इस स्थिति के साथ ही जीना है, आगे बढ़ना है, और साथ ही इस स्थिति का आंकलन करते हुए जितनी भी तमाम जो बंदिशें हैं, वो हमारी बंदिशें जो लगाई गई हैं वो हमारे फ़ायदे के लिए ही लगाई गई हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इन बंदिशों को उस तरह से ना लें, नेगेटिव सेंस में ना लें, पॉजिटिव सेंस में लें और उसी तरह से सेफली आगे बढ़े। मार्क बिल्कुल। एंड लेट्स नाउ इंट्रोड्यूस यू टू आवर पैनल ऑफ डॉक्टर्स. We have with us Dr. Surya Kant, the head of respiratory medicine at King George Medical College Hospital in Lucknow, and also a member of the task force on COVID, KGMU task force on COVID. And Dr. Balwinder Singh, who is the medical superintendent of Safdarjung Hospital, which was one of the first hospitals to deal with COVID, in fact dealt with the first COVID case in our country. So we have Dr. Balwinder Singh also joining us, but we are technically cleaning up our operations as far as the connections are concerned with these two doctors. But as soon as we get our lines clear with them, they will be with us. But in the meantime, let us understand that this program really is called Doctors Speak. It really is for you to listen to what the doctors say, and so that you can follow what the doctors say. Because when you do follow what the doctors say, you are safe. That is simply the purpose of this program. So it's best to consult the doctors and listen to them. And they take us through, because we are going through a period when we are facing a pandemic that has brought economies around the world to its knees, has put us in a lockdown situation, and now we are coming out of that lockdown. We are beginning to live with the virus, and we have to be careful with it. It takes confidence on our part, it takes caution on our part, and all these things we need to learn from the doctors. Because why do we need to learn from them? They are dealing with on a daily basis. They are our corona warriors. They are the ones fighting this war right from the start, right from the beginning. राइट बिल्कुल मार्क। और जिस तरह से अगर हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी आपको दिखा रहे हैं, तमाम अनलॉक 1.0 की जो साथ जो जुड़े हुए SOPs और गाइडलाइंस हैं, मॉल्स आज से खुल जाएंगे, धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, होटल रेस्टोरेंट्स हैं वो खुल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले या पहुँचकर आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जाहिर है जो बेसिक चीज़ें हैं, मास्क लगा कर जाना है, ख़ुद को सैनिटाइज भी करना है वहाँ से लौटते वक्त, और एक जो 2
गज की दूरी है उसको बना के रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार यहाँ पर बात हो रही है, जो कि एक बैरियर साबित होगा इसके स्प्रेड को लेकर के, और साबित हो भी रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्राफिक्स में आ रहा है, अगर आप होटल रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं तो डिस्पोजेबल मेन्यूज़ आ गए हैं, डिस्पोजेबल जो चीज़ें आ गई हैं जहाँ पे आप जाकर अपना व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं और सेफ भी रह सकते हैं। तमाम गाइडलाइंस है जो रेस्टोरेंट्स को दी गई हैं। एंट्री एग्जिट के गेट्स अलग अलग होंगे बोला गया है। अगर आप किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं वहाँ पर भी आपको एटलीस्ट 6 फीट की दूरी जो है वो बनाकर रखनी है। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, दूसरों की सेफ्टी के लिए है, ताकि आप किसी ऐसी व्यक्ति के संपर्क में ना आए जो शायद किसी तरह के सिम्टम्स साथ लेकर आपके बराबर में खड़ा हो या खड़े हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही आगे बढ़ना है। और इसी बीच मार्क हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में हम उनके पास चलेंगे और तमाम उन आपके सवालों पर बात करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज हैं, और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में। आपके घर में बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, अगर आपको काम के सिलसिले में बाहर स्टेप आउट करना है और जाना भी लाजमी है, क्योंकि इसके बिना शायद ज़िंदगी चलती नहीं है और ज़िंदगी रुकती नहीं है, आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन कहते हैं कि प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए अब हमें आगे बढ़ना है। और हाँ, जितने भी जानकार हैं, खासकर डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, हमारे कोरोना वॉरियर्स, एक बहुत बड़ा सलाम उनको जाता है। उनकी बात अगर हम माने तो ज़्यादा बेहतर होगा और हम ज़्यादा सेफ रह सकते हैं। मार्क, In fact, Jyotika, we should think about all the people who are coming out as well, because they are the ones who are braving this, because people have a mental block because they have been in the lockdown. Many of them want to come out because it is out of necessity, because they have to carry on with their lives, but they have to take a precaution while doing that. So we salute the people who are coming out as well to continue with their lives. It's an important way of, it's an expression of your interest in in recovering the economy, in dealing with this situation, and also showing your own confidence in being able to face this pandemic and being able to say that I can stay safe from it. But we also have to remember that people, while taking this decision, are doing things which they have things in their minds. Like, for instance, they may be people who live alone. They may be people with small children. They have to worry about circumstances in case anything does happen to them. So these are the kind of issues that are on people's minds as they come out, and we salute all of you who are able to actually come out and begin your lives once again, because it's important that you do so. And there is no real fear, because the doctors have been telling us that we have a very high level of recovery. Our recovery rate is extremely high, and most people are asymptomatic in this virus, which is a sign that a lot of Indians have some form of preconditioned immunity to the virus, which could mean that we are better off than most countries in dealing with this virus. बिल्कुल। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पूरे देश से माँ की ये आह्वान किया था, जब लॉक कर दिया गया था पूरे देश को, एक तरह से रुक गए, तो और सभी देशवासियों के साथ ही ये मुमकिन हो पाया था कि वो आगे बढ़े, और हमने इस लड़ाई में काफ़ी बड़ी संख्या में सफलता हासिल भी की है। और वो इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि आप सब लोगों ने साथ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता है। अगर आगे बढ़ना है, अगर एक टीम वर्क की तरह हम आगे बढ़ेंगे, एक फैमिली की तरह आगे बढ़ेंगे, तो किसी भी मुश्किल से निजात पाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी होता है माँ कि हम हर चीज़ का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। यस, हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ कुछ ही देर में अभी जुड़ जाएंगे। जी, आज कुछ तकनीकी खराबी, इसी को कहते हैं मार्क डिजिटल जिंदगी अपने आप में जो हम नेचुरल जीते हैं वो तो बेहद आसान होती है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आपस में बात करें, और यही अगर आप डिजिटली आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये हम निर्भर करते हैं उस नेटवर्क पर, वो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़े। और फिर और इस लॉकडाउन के दौरान भी जिस तरह से
डिजिटली और वर्चुअली बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई मार्क, और लोगों ने आपस में भी एक दूसरे से डिजिटली कनेक्ट किया, वर्चुअली एक दूसरे से बातचीत की। तो ज़िंदगी के एक नए मायने हैं वो निकल कर सामने आए हैं, और डिजिटल ज़िंदगी किस तरह से होती है, शायद मुझे लगता है हमारा फ्यूचर कभी होगा तो अगर हम 2050 की अब स्टोरीज देखते हैं और पढ़ते So we हैं can see इनके the बारे में। visuals that they are Yes. that we are showing you also. These are the malls opening up in Yes. Delhi and other places, and we can see that the protocols that are being strictly followed as per the guidelines of the Ministry of Health as well as the Ministry of Home. So these are very strict guidelines, and they are being adhered to by the mall owners, by the administrations of these malls, as well as by the people. So it's a new beginning in a sense, and it will last. People will get used to it, but yes, hopefully we will have a situation where we will not need so many restrictions in the future. But it's always good, to keep ourselves aware that such a thing can happen. The invisible enemy that we are dealing with has changed our focus in a little way. It has made us more cautious. It has a presence of mind. We were going through life quite easily without any care, but now we have to be concerned about these things. But the important thing is that there are a lot of things that are happening on the side as well, and we've been discussing that every day on our shows about how the progress is being made in the development of medication for COVID-19, in how symptomatic treatment itself has been working for lots of people. So these are all good signs, and we are dealing with this virus pretty well, even though the numbers look like they are going up. The fact is that we have a 50% now recovery rate. The number of people who are cured are actually equal to the number of people who are actively with the virus. So that's a pretty good sign. And 50-50 means that, it was actually what the number they were talking about of herd immunity. बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत जुड़ गए हैं लखनऊ से, हेड हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल से। डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत स्वागत है आपका। हम अभी बातचीत कर रहे थे कि ज़िंदगी ने जिस तरह से करवट ली है एक नए रूप में, हम अब वर्चुअल ज़िंदगी की ओर बढ़ रहे हैं, और हमने इस पिछले 3 महीने में इस ज़िंदगी को जिया भी है, और ये जिस जज्बे के साथ लोगों ने मिलकर इस ज़िंदगी को जिया है वो भी यहाँ पर काबिले तारीफ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी कि एक पूरी दुनिया बदल गई है 3-4 महीने के अंदर। 3-4 महीने से पहले यानी 2019 के आखिरी तक जो हम लाइफ स्टाइल थी, हमारी जो जीवन शैली हम जी रहे थे, उसमें हमारा काफ़ी चेंज हुआ है। और अगर मैं देखूं नेचर के करीब, इफ़ आई जस्ट कंपेयर द 2019 विद द लाइफ स्टाइल ऑफ द 2020, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचर के ज़्यादा करीब, अनुशासन के ज़्यादा करीब, संस्कारों के ज़्यादा करीब हम पहुंच गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे 2019 में द होल ईयर देयर वाज ए लॉट ऑफ डिबेट्स कि साहब वो हमारा जो एयर पोल्यूशन है, उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ख़राब है। अभी आप देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ इम्प्रूव्ड, एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है। और दूसरी चीज़, जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इलनेस थी, बिकॉज आई एम ए लंग स्पेशलिस्ट सो आई कैन नो बेटर, कि अप्रैल मई में जो हमारा अस्थमा है, COPD है, या और एलर्जी की बीमारियां हैं या सांस की बीमारियां हैं, ये काफ़ी बढ़ जाया करती थी। अब आप देखिए कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो कम हो रही हैं। हमारा जो घर में एक सिस्टम था, पति पत्नी एक दूसरे से कभी 2-2 दिन बात नहीं कर पाते थे, बच्चों के साथ कभी मुलाकात नहीं हो पाते थे, एवरीबडी बिजी इन देयर बिजनेस। तो ये लॉकडाउन के दौरान एक, वैसे तो बहुत खराब रहा देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन एक फैमिलियल माहौल, एक पारिवारिक माहौल। अब हम लोगों ने बचपन में अपनी दादी नानी से कहानी सुनी थी, बच्चों ने स्टोरी नहीं सुनी थी, तो अभी इस दौरान दादी नानी से कहानी सुनने का मौका मिला, उनसे और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करने को मिला। और दूसरा जो सबसे बड़े आपने कही कि वर्चुअल वर्ल्ड एक पैदा हुआ, हमारी एजुकेशन वर्चुअल हो रही है, हमारी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। अब देखिए, हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं बिना स्टूडियो में जाए, हम जो है स्काइप पे बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। ये भी दुनिया ने एकदम बदल दिया है कि जितनी चीज़ें दूर दूर से हो सकते हैं। एक ज़माने में शायद टेलीपैथी और अब तो हम टेली मेडिसिन, टेली डायग्नोसिस और टेली
पैथी के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कर रहे हैं। इवन ट्रीटमेंट में जो हमारा जो मॉडलिटी थी वो भी चेंज हो गई हैं। अभी हमारे पास रोबोटिक ट्रॉली आ गई हैं, उन पे हम खाना रख देते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रोबोटिक ट्रॉली। अभी हमारे पास जो सफाई और उस सब के इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी रोबोट ड्रिवन आ गए हैं जी, उनसे हम सफाई और ये सब कर देते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिर्फ 4-5 महीने के अंदर एक पूरी दुनिया वास्तव में बदल गई बिल्कुल है। और बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, हरदीप सिंह है पानीपत से। हरदीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले मंगलवार 2 तारीख को हमारी बेटी आई महाराष्ट्र से जी, उसका टेस्ट करवा लिया, टेस्ट नेगेटिव है। तो आज उनको 1 हफ्ता हो गया है, क्या हम उनको अपने साथ रख सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे बेटे को ना खांसी आती है और फिर बार बार उसको फ्रेश होना पड़ता है। टीबी वगैरह कुछ नहीं है, चेक करवा लिया है, और ये क्या हो सकता है, ये तुरंत के डॉक्टर से पता। जी डॉक्टर सूर्यकांत जी, मैं दोनों प्रश्न इनके लेता हूं। पहला प्रश्न तो ये है कि देखिए, जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 14 दिन का है, तो इसलिए जो क्वारंटीन है वो तो पूरा 14 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी संभावना बनी हुई है कि किसी भी समय ये मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इसलिए क्वारंटीन 7 दिन से काम नहीं चलेगा, क्वारंटीन का पीरियड 14 दिन है, 14 दिन को पूरा करना पड़ेगा। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात जो इन्होंने बच्चे के लिए कही कि उसको खांसी बार बार आ जाती है, तो अक्सर मेरे साथ भी होता है, लोगों को छींक आती है, जुकाम होता है, खांसी साधारण आती है और तुरंत फोन आता है, डॉक्टर साहब कोरोना तो नहीं हो गया है। तो इसलिए 3-4 महीनों से मैंने एक कहावत अपनी बनाई है, मैं इनको भी सुना देता हूँ कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती। टपकती हुई नाक से मतलब थोड़ा बहुत छींके आई, नाक से पानी आया है, खांसी आया, तो ये कोरोना नहीं है, सिंपल एलर्जिक भी हो सकता है। इस मौसम में एलर्जिक कफ और एलर्जिक राइनाइटिस ये काफी होता है, और अगर पिछले मौसम में भी इस बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम रही थी तो इसको आप एलर्जी की समझिए और एंटी एलर्जिक दवा दे सकते हैं। साधारण जो तुलसी के पत्ती जैसे होते हैं वो नेचुरल एंटी एलर्जिक होते हैं, वो भी दे सकते हैं। अब इसके इम्यूनिटी एनहांसमेंट के लिए जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइंस आई हैं वो दे सकते हैं, बल्कि वो तो सबको दे सकते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो बाकी कोई डरने की जरूरत नहीं है, और 2-4 टेस्ट तो आप करा ही चुके हैं। Right. In fact, we are also joined by Dr. Balwinder Singh, who's the medical superintendent of Safdarjung Hospital. Thank you, doctor, for being with us. The question that is in many people's mind is that now that the virus is almost everywhere, how far do you have to be from the fomite for it to reach into your system? Because when you breathe in, there's a force involved. Can I lift, for instance, if the fomite is on this table, with my breathing, can I lift the virus into me? Oh, definitely. This is a very interesting question you asked. Yes. I like to tell you that this virus has been labeled as a super spreader. What is the meaning of the word super spreader? In this case, it is that it tends to spread by more than 2 or 3 pathways. First is that, of course, from mouth to mouth, nose to nose, and sneezing and coughing. There is a latest research that it has got a jolly well very easy. It gets transmitted through eyes also. Latest research is very much there. But as far as the fomites are concerned, let me be very clear that this virus is relatively a droplet nuclei which is little heavy. It tends to fall on the ground within a distance of 1 meter. So within a distance of 1 meter, whichever fomites are there, it is definitely going to settle on them. And see, there are controversial reports as the survival time. Let me tell you, there are many authentic reports from various Western countries, including our own. It tends to survive minimum, say, 10 to 12 hours to as long as 96 hours, 4 days. You have to take it for granted, and it can easily settle, and it doesn't dry up and dies so easily. So whenever you touch any surface or any fomite, and if you have not taken precaution, be assured it is going to infect you through eyes, let me say nose, mouth and eyes. राइट हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, डॉक्टर राजेश हैं ग्रेटर नोएडा से। राजेश जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। मैडम, एक्चुअली क्या है कि मुझे कल से ना फीवर हो गया 99 के आसपास, माइल्ड फीवर है, और मेरे हाथ के तलवे में ना काफी जलन होती है, हाथ के तलवे में और पैर के तलवे में कल से। तो कल तो मैंने क्रोशीन खाया था,
तो अब क्या करूं मैम? डॉक्टर सूर्यकांत आपके पास आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इनको पूछिए कि क्या इसके साथ साथ गले में खराश भी है, खांसी भी आ रही है, या सिर्फ थोड़ा फीवर हुआ है? जी, आप हमारे साथ हैं राजेश? जी जी मैम। हाँ, तो डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके गले में कुछ खराश या खांसी ऐसा कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, गले में कोई खराश तो महसूस नहीं कर रहे, थोड़ा सा लगता है कि ऐसे टाइप का, लेकिन जी। कोई ऐसा खराश नहीं है। मैंने गार्गल किया था, वैसे आवाज वगैरह में कुछ ऐसा नहीं है। जी। और ऐसा है कि ऐसा आपका जी तो मैम। सिर्फ ये मौसम बदलने के कारण जो फ्लू होता है वैसा ही लग रहा है, क्योंकि कोरोना से यूजुअली जो फीवर होता है वो थोड़ा तेज होता है और ड्राई कॉफ के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर भी अगर आप पैरास्टामोल 1-2 दिन लीजिए, थोड़ा पानी उबाल के भाप लीजिए, और अगर उससे नहीं जाता है तो नेचुरली आप अपने जो सीएमओ ऑफिस हैं वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, और ज़रूरत होगी तो आपकी टेस्टिंग कर ली जाएगी कोरोना के लिए। जी, Right. Dr. Suryakant, how people who are coming out now, they are what are the main things they should keep in mind? Because they have been relatively careful about because they have been at home. Now that they are coming out, there are quite a few people that they are going to be meeting. The social distancing, all these things are, they are good practices, but how practical are they, and how should people, what are the things that people should immediately keep in mind, cautions that they should be taking, precautions? Yeah, for so many weeks, so many months, they were inside the, actually locked classically inside the home. Yes. And now people are coming out. So I think 3 things to be remembered: that you have to maintain the physical distancing, number 1. You have to, of course, cover your nose and mouth with a mask. And number 3, frequently you have to wash your hands. So I would suggest, if you don't have the sanitizer, don't worry. If the facility of even soap is not available, keep a paper soap in your purse. So that is very important after 1 hour or 2 hours, because it is our practice that we can touch so many items. We are touching doors, we are touching the lift button, we are touching, of course, so many things in the office, outside the office. And so you need frequent hand wash. And that's why I would suggest that you keep the paper soap inside your purse. The another thing is that 4 categories, I would say, they should keep a special precaution, and especially they should not, until otherwise there is a, of course, dire emergency, they should not come out of the home. Number 1, elderly. Number 2, children. Number 3, all patients who are having chronic illness like diabetes, heart disease, lung disease, liver disease, kidney diseases, cancer, or they have been heavy smoker or some addiction or on cancer treatment. Among such type of patients, plus pregnant ladies. So until there is a dire emergency, they should not come out of the home. They should keep still inside the home, although unlock process is going on. But preferably they should remain inside the house, and a special precaution should be taken. If you are diabetic, your diabetes should be controlled. If you are asthmatics, your inhaler should be ready. You take inhaler as per your doctor's advice, and your asthma should be controlled. If you are having blood pressure or any heart disease, then of course you should take regular medication for controlling your blood pressure and heart symptoms. If you are having liver disease, of course your medication should be regular, and you should not have the altered liver function. And similarly, if you are under dialysis or any chronic renal disease, so of course every precaution you should take, and better you keep inside your home. राइट। डॉक्टर बलविंदर आपके पास आना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सूर्यकांत की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि जब तक आपको इमरजेंसी ना हो, ज़रूरत ना हो, आप घर से बाहर ना निकले। लेकिन चूंकि ये मॉल्स खुले हैं तो बहुत से हमारे जो दोस्त मित्र और जो लोग हैं देश के, वो ये समझते हैं कि अरे 2 महीने से लॉकडाउन था, बाहर निकलते हैं, चलते हैं। और विंडो शॉपिंग का भी बड़ा एक ट्रेंड है हमारे देश में। हमें ख़रीदना कुछ नहीं है, लेकिन हम हर चीज़ को टटोल कर ज़रूर देखते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि इतने टाइम लॉकडाउन में रहने के बाद इंसान की इच्छा करती है वो बाहर जाए। मैं कहता हूँ जरूर जाइएगा, मॉल में जाइएगा, शॉपिंग करने जाइएगा, लेकिन एक तो आप कोशिश करिए कि अपने हाथों में ग्लव्स पहनिएगा।
देखिए मॉल में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को टच करेंगे। अब दुकानदार जो है या मॉल वाले कितना ही सैनिटाइज क्यों ना कर लें, जब मल्टीपल हैंड्स लगेंगे तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहेंगे। रादर देन कि आप मॉल वाले को कुछ बोलें उसके बारे में सोचें, आप अपने ग्लव्स जरूर पहनिएगा। और ग्लव्स पहनने से पहले आप देखिएगा बहुत सारे लोग मास्क पहनते हैं लेकिन वो लूज मास्क होता है, कभी वो नोज से उतार देते हैं, कभी मुंह से आधा ढकते हैं। ये मत करिएगा, पूरा उससे अच्छे से पहनिएगा। और एक बहुत अच्छी सलाह मैं दूंगा कि एक सिंपल सा हैंड सैनिटाइजर अपने पॉकेट में, अपने बैग में रख के जाइएगा। कई जगह आप जाएंगे, आपको पानी वहाँ नहीं मिलेगा इतनी आसानी से, तो आप हैंड से अपने सैनिटाइजर से अपने हैंड्स को सैनिटाइज करिएगा। और एक चीज मैंने और बोली है कि अब ये वायरस के बारे में बड़ा क्लियर कट है कि ये आंखों के थ्रू भी फैलता है। आंखों से ये इन्फेक्शन हो सकता है, और उसमें आप चश्मा लगा के जाइएगा। अगर आप चश्मा पहले ही पहनते हैं तो जरूर लगाइएगा, बिना चश्मे में मत जाइएगा। अदरवाइज आप कोशिश करिएगा आप एक जीरो का स्पेक्स बनवा लीजिएगा, वो भी पहनिएगा। और बालों को आप हमेशा कवर करके जाएं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। आप बिल्कुल एक बालों को इस तरह से कवर करिएगा कि बाल सारे अंदर हो, कवर हो, कैप होनी चाहिए। क्योंकि आपके एक चीज ध्यान रखना है कि बालों के थ्रू ये वायरस, मैंने बोला था, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे काफी देर तक सर्वाइव करता है, वो अपने बालों के ऊपर भी बैठ सकता है। तो आप आए, कैप पहन के जाएं, आए और अपने बालों को उसके बाद खोलें। और तीसरा ये देखिएगा कि आप जो शूज या चप्पल पहन के जाते हैं, कृपया जब घर में आए तो उसको दरवाजे के पास ही उतार दें, उसको अंदर मत ले जाइएगा। अपने घर में घुसते ही सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है, सीधा सब सामान एक जगह रखिएगा और सिंक पे जाइएगा और जाके अपने हाथ धोइएगा अच्छे से, और फेस धोइएगा। अपने नोज के आसपास जो डीप कट्स होते हैं, डीप एरियाज होते हैं, उसमें अच्छे से साबुन लगाइएगा। और इसके अलावा जो अपनी कोहनियों तक अपने हाथ को धोइएगा, ये एहतियात बरतिएगा। कोशिश करिएगा पेपर टॉवल लीजिएगा, नहीं तो आप टॉवल जो लें उसको वहीं उसी जगह रहने दें, उसको बार बार यूज ना करें। यदि मल्टीपल लोग यूज ना करें तो अच्छी बात है, लेकिन घर में कोई बात नहीं, आपने एक टॉवल रखा हो उससे आप कर सकते हैं। अपने बालों को ढकिएगा, लेटेस्ट रिवाइज बालों को ढकिएगा, हाथों में ग्लव्स पहनिएगा, टाइट फिटिंग मास्क पहनिएगा, और अपने शूज को अपने आके घर के बाहर उतारिएगा। ये बहुत आपको हेल्प करेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई डॉक्टर साहब। एक स्कॉलर हमारे साथ है, सुजीत है दिल्ली से। सुजीत, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल ये है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो कि डॉक्टर से मिलते हैं तो उनसे लोगों को कोरोना फैलने का कितना खतरा है और खुद वो कितना प्रोन है, या जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर से ना मिले, बट अपनी जॉब ही ऐसी रहती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जहाँ पर डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है, और ज्यादातर सारी इंडियन कंपनीज खुल चुकी है, तो उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया और प्रेशर भी काफी बनाते हैं लोगों पर कि हाँ आपको इतने डॉक्टर मिल रहे हैं। तो ऐसे में कितना खतरा है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, और उनसे कितना खतरा है फैलने का, कि कोरोना कितना फैल सकता है? जी, डॉक्टर सूर्यकांत आपके पास आएंगे इस सवाल के साथ। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर के पास बाई चॉइस तो कोई आता नहीं है, डॉक्टर के पास सभी लोग बाई कंपल्सन आते हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जितना आपको किसी और से रिस्क है उतना ही डॉक्टर से रिस्क है। डॉक्टर चूंकि बहुत पहले से अवेयर हैं, इसलिए वो प्रोटेक्शन अपना खुद रखते हैं, अपने प्रिकॉशंस खुद रखते हैं। आप वैसे भी देख लीजिए पूरे देश में तो एक्सेप्शनली कुछ डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं। अदरवाइज जैसे मैं अपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का उदाहरण दूं तो सिर्फ और सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर हमारा इतने 4 महीने के दौरान इन्फेक्ट हुआ है। तो डॉक्टर्स को चूंकि पता है ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, इन्फेक्टेड एयर से हो सकता है, इन्फेक्टेड फोमाइट से हो सकता है, एरोसॉल से हो सकता है, तो दे आर यूजुअली कीपिंग द प्रिकॉशंस। हाँ, अब जैसे आपने कहा कि मिलना है तो मिलने में वही रूल यहाँ भी लागू होता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग आप बनाए रखेंगे, आप मास्क लगाए रखेंगे। तो अगर ये सब प्रिकॉशन, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो चाहे आप डॉक्टर से मिलें चाहे नॉन डॉक्टर से मिलें, एक ही जैसी प्रिकॉशन आपको लेनी है और एक ही जैसी रिस्क है। तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा रिस्क डॉक्टर से नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हमें डॉक्टर बलविंदर ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई कि जब आप बाहर स्टेप आउट करेंगे, क्योंकि मॉल्स वगैरह अब खुल गए हैं, तो मॉल्स में एक मिथ है, भ्रम है, या ये कितनी सच्चाई है, इसे आप क्लियर करें हमारे दर्शकों के लिए, कि जो सेंट्रलाइज्ड एसी है सिस्टम एक मॉल्स में होता है, और वो जाहिर है कि आप उससे तो बच नहीं सकते, तो आप उसमें कैसे सेफ रह सकते हैं, वो कितना सेफ है नहीं है, इस पर आप अगर रोशनी डालें। देखिए, बिल्कुल सही है, सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर जहां भी होगा
वहाँ पर सेम एयर रोटेट करती है और वहाँ ट्रांसमिशन का खतरा ज़्यादा होता है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब ये तो एक पॉलिसी मैटर है, एक एयर कंडीशनिंग वालों को और इलेक्ट्रिशियन वालों को थोड़ा सा इसमें इनोवेशन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हुआ भी है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एयर कंडीशन वालों ने और उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि कुछ एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने की कोशिश की है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद सेंट्रल एयर कंडीशन में भी ये मॉडिफिकेशन हो जाता है कि सेम एयर रोटेट ना करे। लेकिन ये बात सही है कि जहां जहां सेंट्रल एयर कंडीशन होगा, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो या कोई दूसरा एरिया हो, तो इनमें ऑफ कोर्स जो कंटामिनेशन है या जो स्प्रेड है, जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है, वो ज़्यादा होगा। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ये कुछ प्रिकॉशंस ला रही हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा रहे हैं कि किस तरह से इसको वो किया जाए। लेकिन फिर भी अगर आप मास्क लगा के जा रहे हैं, अगर आप हाथ में ग्लव्स, जैसा डॉक्टर बलविंदर ने बताया, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, एक पॉकेट में अपना सैनिटाइजर डाले हुए हैं और आप जो हैं वो अपने बालों को कवर किए हुए हैं, और गॉगल्स या आप स्पेक्स, अगर आप नॉर्मली चश्मा लगाते हैं और नहीं लगाते हैं तो गॉगल्स पहने हुए हैं, तो काफ़ी कुछ प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं ये बात जरूर कहूँगा कि सेंट्रली एयर कंडीशन विदाउट मॉडिफिकेशन, जिनमें अभी तक मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं लगाए गए हैं, उसमें खतरा ज़्यादा है। जी डॉक्टर बलविंदर, आपके पास भी आएंगे। जैसे कि डॉक्टर सूर्यकांत बता रहे थे कि जब आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, जाहिर है हर चीज़ पब्लिक है, हर चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है। फिर चाहे वो टॉयलेट्स की बात की जाए, शौच की बात की जाए, तो इसी तरह से अब मॉल्स में और अगर धार्मिक स्थल हैं या और तमाम होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, तो कॉमन टॉयलेट्स भी हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत एक बड़ा कारण एक इन्फेक्शन का बन सकता है। अगर मैं सही हूँ, आप इससे कितना सही मानते हैं? हाँ, देखिए ये बहुत आपने ठीक बोला है। देखिए जितनी पब्लिक ज़्यादा जाएगी जिस जगह में, चाहे वो टॉयलेट्स हो, चाहे पब्लिक मॉल में कोई शॉप हो, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देखना है, ऑब्जर्वेशन है कि हर आदमी तरीका प्रिकॉशन नहीं लेता है, अनुशासन नहीं रहते हैं। अभी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, एक तो आप दूसरे उससे दूर रहिएगा। जब एक आदमी एक पर्टिकुलर सिविक कम्युनिटी में जा गया है तो आप रुक जाइएगा। दूसरा ये है कि अगर आपने ग्लव्स पहने हुए हैं, आपने मास्क पहना हुआ है और आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, तो प्रिकॉशन तो आपको खुद ही लेनी है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आदमी, हर इंसान सोचेगा तो ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि मैं एक चीज और बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जब जाते हैं बाहर, ग्लव्स सब लोग नहीं पहनते, तो कम से कम आप इतना कर सकते हैं कि सोप स्ट्रिप्स आर इजीली अवेलेबल, गुड क्वालिटी सोप स्ट्रिप्स रखिएगा। कहीं ना कहीं आपको पानी मिलेगा, तो वॉशरूम जाते हैं तो इमीडिएटली बाहर आके अपना सोप स्ट्रिप से हाथ धोइएगा। और मॉल में जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मॉल में हर चीज़ को टच ना करें, जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसको लीजिएगा। फल लेने जाते हैं आप, मार्केट से सब्जियां लेके आते हैं, अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है। आप बाहर से कोई भी चीज़ खरीद के लाएंगे, आपको दो चीज़ें नजर आएंगी, एक तो वॉशेबल होंगी, दूसरी नॉन वॉशेबल होंगी। जो चीज़ आप वॉश कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ला रहे हैं, आपको रनिंग वाटर में धो के उसको साफ करके पैकेट बना लीजिएगा। फल लेके आ रहे हैं, उसको पानी में थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिएगा, उसको भी वॉश करिएगा, पैकेट में बना के डाल दीजिएगा। जो आइटम्स आपकी वो हैं जो वॉशेबल नहीं है, अब ध्यान उस पर देने का है। वॉशेबल नहीं है तो जिस दिन सनलाइट निकला, थोड़ी देर सनलाइट का एक्सपोजर कर लीजिएगा। सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो ये वायरस को बहुत जल्दी एलिमिनेट कर देता है विद इन फ्यू सेकेंड्स। आप सनलाइट में उसको रखिएगा। और वॉशेबल चीज़ों को आप देख लीजिएगा कि आप, एक चीज़ और, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को घर आते हैं, तो आप अपना ड्रेस जो है ला के उसको वॉशिंग में डाल दीजिएगा। डोंट वियर द सेम ड्रेस एवरी डे। थोड़ा इसमें परेशानी जरूर होगी, आपके कपड़े जरूर बढ़ जाएंगे धोने के लिए, लेकिन इसको ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है। इटली से एक स्टडी आई थी कि भी शूज के ऊपर ये वायरस जो है बहुत जल्दी सेटल होता है, और सॉक्स के ऊपर, क्यों? उसमें मॉइस्चर है देखिए, और वो वहां पे जाके सेटल हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अपने शूज को डेली जो है ना अच्छे कपड़े से साफ करिएगा। सॉक्स हैं, आप धुली सॉक्स जरूर पहनिएगा रोज। और मास्क के बारे में एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि हर आदमी के पास ना N95 मास्क नहीं होता है। ट्रिपल प्लाई मास्क अगर आप लेते हैं तो वो 24 घंटे इफेक्टिव नहीं रहता है। वो मास्क आप 12 घंटे पहने, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दें। अब कॉटन का मास्क है,
मैं सोचता हूँ कि भी जहां तक अपने को प्रोटेक्ट करने का सवाल है, आप कॉटन का मास्क लीजिएगा और उसको डेली आके शाम को धोइएगा। और स्नीजिंग जब आपको आए घर में आके, स्नीजिंग के टाइम पे इंसान को पता चल जाता है, इमीडिएटली आप सिंक के पास जाइएगा, स्नीज करिएगा, टिश्यू पेपर अपने पास रखिएगा, हैंड सैनिटाइजर रखिएगा। और इसके अलावा एक चीज और बहुत ध्यान देनी है, जी। बाहर जा रहे हैं आप, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग चाय पी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, खाना खा रहे हैं, गोलगप्पे वाले की दुकान के पास खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे हैं, बिल्कुल। तो उनके मन में ना किसी तरह का भय नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे ये डरा या मैं पैनिक नहीं होना चाहिए मेरी बात सुन के। अभी जुलाई के और अगस्त के महीने में देखना कि जैसे कहते हैं ना, सुनामी ऑफ कोरोना केसेस आएगा, बहुत केसेस आएंगे, उसी हिसाब से थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ेंगे, पर हमें डरना नहीं है। और अगर हम एहतियात बरतेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, हम डॉक्टर्स भी इसको कंट्रोल कर पाएंगे और पब्लिक खुद भी कंट्रोल कर पाएगी। तो सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग इज बेसिकली ए वैक्सीन, और प्रिकॉशंस आर लाइक यू द बेस्ट कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स दैट यू कैन यूज फॉर दिस। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें। डॉक्टर साहब, ओम प्रकाश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। मेरे बेटे को 23 तारीख को रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव। हेलो जी जी, जी तो वो होम क्वारंटाइन में हमने रखा, डॉक्टर ने बोला कि आप घर पे रख सकते हैं। तो कल उनको पूरे दिन हो जाएंगे, यानी कि 17 दिन के लिए बोला था उन्होंने, 17 दिन पूरे हो जाएंगे। तो अभी हमने जांच कराने के लिए बोलते हैं, तो वो क्या डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जांच कराने की जरूरत ही नहीं है। जी, तो आप पूछना चाह रहे हैं कि उनकी जांच कराई जाए या ना कराई जाए? जांच कराई जाए, ना कराई जाए, और आगे दिक्कत आई तो फिर क्या करेंगे? जी, डॉक्टर सूर्यकांत आपके पास आएंगे सवाल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनमें जो माइल्ड केसेस हैं, तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस यानी जिनको सीवियर इलनेस नहीं है, उनको रिपीट टेस्ट की जरूरत नहीं है। देखिए, कोरोना को मैं कहता हूं ये कोरोना नहीं, कोरोना यात्रा है। जैसे आपके साथ ट्रेन में कोई बैठ जाता है, 2-4 घंटे के सफर में साथ रहता है, इसी तरह कोरोना की एक 28 दिन की यात्रा है। उसकी टाइमलाइन आप देखिए तो पहले दिन इन्फेक्ट होता है, फिर 1 हफ्ते के बाद कुछ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती हैं, 3 हफ्ते के बाद वो एंटीबॉडी भी खत्म होना शुरू हो जाती है, एंटीजन भी फॉर्मेशन खत्म हो जाता है, और पूरी तरह से आप अब अगर आपके पेशेंट को बुखार नहीं है या और कोई तकलीफ नहीं है, इसका मतलब है कि लक्षण उसके खत्म हो गए हैं। तो कोरोना तो अपना 28 दिन के बाद बाय बाय करके अपने आप चला जाता है, तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। माइल्ड केसेस में नई गाइडलाइन के अनुसार रिपीट टेस्ट नहीं करवाया जाता है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लें, किसी रिपीट टेस्ट की जरूरत नहीं है। और आप पूरा 28 दिन का इनका जो आइसोलेशन है, वो पूरा क्वारंटीन है, जो पूरा करवा दीजिए। 17 दिन हो गए, 11 दिन का और प्रिकॉशन ले लीजिए। उसके बाद ये किसी के साथ बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, माइल्ड केसेस में रिपीट टेस्ट नहीं किया जाता। Right. Dr. Balwinder Singh, from today also religious places have started, and you know, we are a country where people are great believers and they have been you know, away from their gods for a long time, and it's important that many of them would like to go and worship. What would you like to say to them, and you know, to maintain to see that they don't spread the virus? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल बोला। मैं खुद कल जब मैंने टीवी पे देखा कि रिलीजियस प्लेसेस खुल रहे हैं, तो मेरे मन को अच्छा लगा, क्योंकि हर इंसान जो है अपने मंदिर में, अपने धर्म में, गुरुद्वारे में, जहाँ पे भी जाता है, वो जाना चाहता है, चर्च में या कहीं पे भी। पर सवाल अल्टीमेटली वही आता है कि जब आप जा रहे हैं तो आपके माइंड में 2 चीजें होनी चाहिए दिमाग में। आपने पहले तो अपने आप को तो बचाना ही है, सेल्फ इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके आगे या पीछे कोई और खड़ा है, उसकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जब धर्म स्थल पे जाएं तो सबसे पहला कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल अनुशासन के साथ पालन करें। दूसरा, वहाँ पे जैसे मंदिर में हम जाके घंटी बजाते हैं या प्रसाद लेके जाते हैं और देते हैं, पंडित जी को देते हैं या गुरुद्वारे में प्रीस्ट को देते हैं, ये सब नहीं करना है। आप जा रहे हैं वहाँ पे अपने मन की पीस ऑफ माइंड के लिए, आप जाइएगा। और जाने से पहले आप वहाँ पे अक्सर ये देखिएगा, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। पानी है, पानी से अपने पैर अच्छे से धोइएगा, अपने हाथ अच्छे से धोइएगा, और अपने हैंकी अगर आपको यूज करना है, रिलीजियस प्लेस में जा रहे हैं तो हैंकी आप अपना ही यूज करेंगे। अक्सर आप देखेंगे रिलीजियस प्लेसेस पे टॉवल्स पड़े होते हैं, तो उन टॉवल्स को, उन कपड़ों को मत यूज करिएगा। आप घर में जाने से पहले सोचिए कि मैं मंदिर जा रहा हूँ,
तो वहां पे जाने से पहले मुझे अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। कोई खाने की चीज ना लेके जाएं, वहां मंदिर के बाहर कुछ बांटे नहीं, कपड़ा अपना लेके जाएं, हो सके तो सोप स्ट्रिप्स लेके जाएं, वहां पे अपने सोप स्ट्रिप से हाथ धोएं और फिर अंदर जाएं, पैरों को साफ करें, हाथों पैरों को धोएं, अंदर चले जाएं और जाके ज्यादा समय भी ना बिताएं। वहां पे बहुत ज्यादा समय बिताएंगे तो भीड़ इकट्ठी होगी, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा, आपको दर्शन भी हो जाएंगे, आपकी पीस ऑफ माइंड भी रहेगी और बाकी लोग भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, आप भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। Right. बिल्कुल। Dr. Suryakant, another question is with regard to restaurants Yes. opening. Now, people are going to be eating food from outside, and we have been ordering food in a sense which has been packed. But safe food practices are one of the ways in which you can keep this virus away. What would be, I mean, we have all been eating, in the lockdown period, we've been eating at home, so that those safe food practices would be maintained in the home. But now they are going to be in the public place, in a restaurant. What advice would you give people? Actually, if you ask my personal liking, I always like the home food. Yes. Actually, best food, it is cooked by your mother, your wife, your sister, your daughter even. True. So if you see, if I used to compare, when the lockdown begins, my daughter used to cook only two things, the tea and of course the Maggi. But during lockdown, my daughter, of course, developed her cooking skills, and now she can cook almost 10 items, 10 That's items. So still I would suggest that don't rush restlessly to the restaurants. First, for last more than 2 months, you are of course eating your of course homemade food, and that is also very good. So slowly and slowly go to the restaurant. Of course, you are eager, you are very much restless for going restaurant. Go slowly and slowly, and all restaurant people are also requested that they should not allow, as per the government rules, that 50% of the seat, they should be maximum 50% seats in the restaurant they can be occupied. So this rule should be obeyed. And the first and second, then the important thing is that before entering into the restaurant, go to the washroom, wash your hands, and even after taking the food, you wash your hands and then come out. Another thing is that, of course, even you are family member, still you have to make the physical distance. So it's not necessary that on one table you are sitting on all 8 people or 7 people together. So you can share 2 tables, 4 by 4. I mean, 4 people are sitting on one table, 4 people are sitting on another table. And of course, avoid the, of course, for example, you should avoid the items, they are not well cooked or not hot. I mean, usually you can avoid the salads, you can avoid the cold drink, you can avoid the other things, curd, etc. So whatever the cooked properly, and you should ensure that the chef, the waiter, everybody should wear the gloves and of course the head cover. And similarly, of course, go for the digital money. So don't exchange the money at the counter. So payment should be done by digital transaction. I mean, such kind of course, precautions they should be, of course, followed. Right. डॉक्टर सूर्यकांत, एक सवाल मैं अपनी तरफ से भी एक पूछना चाहूंगी कि जी, जी। जब आज हम ऑफिस आ रहे थे तो मैंने रास्ते में देखा कुछ बच्चे आइसक्रीम के लिए भी बहुत जिद कर रहे थे। तो आइसक्रीम, और मैंने सुना उनकी माताओं को कहते हुए कि आइसक्रीम सेफ नहीं, अभी नहीं खानी है, अब गर्मी का वक्त है, आइसक्रीम बच्चे जाहिर है मांगेंगे और आइसक्रीम वाले घूम भी रहे हैं आइसक्रीम लेकर। तो ये बताइए कितना सेफ है? देखिए, ऐसा है कि यूजली अब आप आयुष मंत्रालय की आप देखिए एडवाइजरी देखिए, तो आयुष मंत्रालय ने साफ कहा है कि जितने गर्म पेय हैं, चाय है, कॉफी है, सूप है, बाकी सब चीजें आप ज्यादा लें, स्टीम लें, गार्गिल करें, गरारा करें, काढ़ा पिएं, ये सब दी गई हैं चीजें। यूजली कहा गया है कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम अवॉइड करें 2 कारणों से। एक तो जब आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह मतलब आप अपर एयरवे को ठंडा रखते हैं तो अपर एयरवे की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। अपर एयरवे को अगर आप गर्म रखते हैं तो अपर एयरवे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत अगर एलर्जिक राइनाइटिस है आपको तो ये भी प्रोवोक करते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आपको अस्थमा है तो ये अपर एयरवे प्रोवोक करते हैं। और कोई भी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, चाहे वो जनरल इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है या नाक की आपकी इम्यूनिटी कमजोर है क्योंकि आपको नाक की एलर्जी है, आपकी गले की इम्यूनिटी कमजोर है क्योंकि फेरेंजाइटिस या साइनोसाइटिस है,
या आपकी लंग की इम्यूनिटी कमजोर है क्योंकि अस्थमा है, अगर आपकी कहीं की भी इम्यूनिटी कमजोर है तो कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि जो आइसक्रीम सड़क पे बेच रहा है वो ग्लव्स पहने हो, तो ये भी देखना पड़ेगा। मास्क का इंश्योर करें कि मास्क लगाए हो, ग्लव्स पहने हो, हाइजीनिक हो। तो ठीक है, अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं तो आप कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी। और फिर भी जितना हो सके अवॉइड करें, वो ज्यादा ठीक है। अगर घर में ही बनाना है तो घर में कुछ जैसे पना आम का बनाया जा सकता है, वो दिया जा सकता है। घर में लस्सी बनाई जा सकती है, वो दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपने सब कुछ हाइजीनिक तरीके से बनाया है, सेफ तरीके से बनाया है, बाहर का जहां तक हो सके। इसीलिए कहते हैं अभी चाट है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इस तरह के जो आइटम बाहर मिल रहे हैं इनको थोड़ा अवॉइड करें, वेल कुक्ड फूड ही प्रेफर करें। बिल्कुल। डॉक्टर बलविंदर, आपके पास आना चाहूँगी। वी ऑल आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज दीज डेज, और सोसाइटीज़ में हम सब लोग रहते हैं। हम कल भी ये बात कर रहे थे, हमारे जो सेटअप है रहने के वो अब थोड़े से बदल गए हैं। ऐसे में जब कॉमन पार्क होता है वहाँ बच्चे अक्सर खेलते देखते हैं, या बड़े लोग भी बच्चों के साथ नीचे घूम रहे होते हैं। कितना सेफ है बच्चों का इस तरह से खेलना, या फिर किन किन चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए? हाँ, देखिए ये सवाल बहुत ही चैलेंजिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने, और इसमें बच्चे और बड़े। मैं ये कहूँगा कि अगर आप बड़े लोग अकेले जा रहे हैं घूमने के लिए तो वो कृपया दूर रहकर ही घूमें, बहुत ज्यादा बातें मत करें। अक्सर लोग सैर करने जाते हैं तो घूमते कम है, बातें ज्यादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मास्क पहन के रखिएगा और अपना आराम से घूमिएगा, और हल्का फुल्का आप एक्सरसाइज भी करिएगा, कोई घबराने वाला बात नहीं है। अब देखिए, जहां तक बच्चों का सवाल आता है कि बच्चे एक तो मास्क पहली बात पहनते नहीं, पहनेंगे तो उतार देंगे। तो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन कोई ले तो बच्चे को अपने साथ ही ले जाइएगा, बच्चे को अपने साथ घुमा लीजिएगा, मास्क लगाए और बच्चा आपके साथ घूमे। उसको थोड़ा समझाना होगा कि देखो अभी ग्रुप में नहीं खेलना है। अब ग्रुप में खेलेंगे तो देखिए डेफिनेटली देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि एक बच्चा भी, ये इट्स अ मैटर ऑफ लिटिल सॉरी डोंट माइंड कॉमन सेंस, एक बच्चा भी पॉजिटिव होगा तो ग्रुप में सारे बच्चे जो है ना एकदम से पॉजिटिव हो जाएंगे और ये तकलीफ का कारण बनेगा। बिल्कुल। पेरेंट ये अपने बच्चे को साथ लेके जाएं, बच्चे को ग्रूम करें, उसको समझाएं, उसको काउंसलिंग दें। एजुकेट करने से बच्चे के एटीट्यूड में चेंज आता है। तो अपने साथ बच्चे को सेफली घुमाइएगा और इकट्ठे ग्रुप में मत छोड़िएगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। Right, we have a caller online. Om Prakash is calling in from Ghaziabad. Om Prakash, please ask your question. आप अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार जी। मेरे दो प्रश्न हैं जी। एक तो ये जो लॉस ऑफ टेस्ट को थोड़ा डिस्क्राइब किया जाए, ये लॉस ऑफ टेस्ट क्या रहेगा। और दूसरा, मुझे 30 मई से फीवर है, स्टार्टिंग में 101 था, फिर पैरासीटामोल लिया तो ये कम हो गया, तो नेक्स्ट डे कम हो गया तो मैंने कोई मतलब डोज नहीं ली, तो उसके बाद जो है ये 100 आ गया। फिर मैं ट्वाइस लेता रहा पैरासीटामोल, उसके बाद मैंने थ्राइस कर दी तो मेरा 99 पे आगे रुक गया। तो मैंने कल भी कोई डोज नहीं ली, तो क्या कहते हैं, ये रात को मैंने देखा तो कुछ नहीं था, 99 ही था, लेकिन आज अर्ली मॉर्निंग 6:45 पर ये 101 था। तो उसके बाद फिर आज डोज ली है तो क्या कहते हैं अब 98.5 है। मुझे क्या करना चाहिए? आपकी उम्र कितनी है ओम प्रकाश जी? 61 ईयर्स। डॉक्टर सूर्यकांत आपके पास आएंगे। देखिए ओम प्रकाश जी, जो नहीं करना चाहिए आप सब वही कर रहे हैं। इसको सेल्फ मेडिकेशन बोलते हैं। भाई ऐसा करिए, किसी अपने डॉक्टर साहब से संपर्क करिए, पूरी जांच करवाइए। आज 8 तारीख हो गई और 30 मई यानी 9 दिन से आपको फीवर चल रहा है। इसको इग्नोर मत करिए। केवल पैरास्टामोल एक छोटी दवा है, वो डॉक्टर नहीं है। तो आप कृपया डॉक्टर से संपर्क करिए, अपना इन्वेस्टिगेशन कराइए और उसके हिसाब से जो बीमारी, जो डायग्नोसिस पकड़ में आती है उसके हिसाब से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करिए। 8-9 दिन बहुत होते हैं, कृपया ऐसा ना करें। जी डॉक्टर सूर्यकांत, अगर आप इसी बात को आगे बढ़ाएं, ये जो सेल्फ मेडिकेशन का जो चलन होता है, खुद से पैरासिटामोल, I think he also asked about loss of taste, doctor. हाँ, loss of taste also, जी। देखिए लॉस ऑफ टेस्ट अगर इनको है और फीवर भी साथ में है तो ये कोरोना का स्ट्रॉन्ग केस बनता है इनका। लॉस ऑफ टेस्ट से मतलब होता है कि जैसे आप मीठा खाते हैं तो आपको मीठा लगता है, खट्टा खाते हैं तो आपको खट्टा लगता है, नमकीन खाते हैं तो आपको नमकीन लगते हैं, चटपटा खाते हैं तो चटपटा लगता है। अब WHO ने 9 सिम्टम्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं। 3 सिम्टम मेन हैं, जिसमें से फीवर है,
ड्राई कॉफ है और ब्रेथलेसनेस यानी सांस की तकलीफ है। इसके अलावा जो 6 सिम्टम हैं, जैसे सिर दर्द हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है, मस्कुलर पेन यानी माइल्जिया हो सकता है, कभी कभी नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया हो सकता है। तो ये बाकी 6 सिम्टम जो हैं वो रेयर हैं, और 3 जो मैंने पहले बताए, सूखी खांसी, बुखार और सांस फूलना, ये मेन सिम्टम हैं। तो इनको बुखार भी है और साथ में अगर लॉस ऑफ टेस्ट भी है, तो 2 एक बड़ा और एक मेजर और एक माइनर, ये सिम्टम तो ही हैं, तो इसलिए इनको कराना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपने कहा ओवर द काउंटर, तो ओवर द काउंटर एक्चुअली हमारे कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर एक सिंगल टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स या पैरास्टामोल की भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। हमारे देश में केवल शेड्यूल एज ड्रग है, कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको छोड़ के, और बाकी मेजोरिटी 99% से ज़्यादा दवाएं जो हैं वो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। भैया एक पैरास्टामोल देना, एक कप सिरप देना। तो मेरा मतलब है कि चलिए ठीक है, हमारे देश में उतने अभी क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं, जो आपके पॉपुलेशन और डॉक्टर रेशियो है वो उतना अच्छा नहीं है, तो आप 1-2 दिन के लिए छोटी मोटी पैरासिटामोल, दर्द की दवा या कफ सिरप ले सकते हैं। लेकिन खास तौर पे अगर आपको 3 दिन से ज़्यादा, 72 घंटे से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो कम से कम ऐसे प्रयोग ना करें। वैसे तो बिल्कुल ही ना करें, खास तौर पे मैं एंटीबायोटिक का मिसयूज बहुत होता है। तो पैरासिटामोल या छोटी मोटी दवा तो आप ले सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, दर्द पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन खास तौर पर एंटीबायोटिक तो एक भी दिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप मत लें, बिना डॉक्टर की सलाह के मत लें। एंटीबायोटिक मिसयूज से बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। आपके एंटीबायोटिक बार बार खाने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है, आपको छोटे मोटे पता भी नहीं चलेगा, डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, अपर जीआई, लिवर टॉक्सिटी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो चाहे जो स्पेसिफिक जितनी दवाएं हैं, डायबिटीज़ की दवा है, सांस की दवा है, हार्ट की दवा है, गुर्दे की दवा है, जिगर की दवा है, ब्लड प्रेशर की दवा है, और खास तौर पर एंटीबायोटिक्स हैं, तो इन सबको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन वैसे तो बिल्कुल एक दवा के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन 1-2 दिन के लिए आप पैरास्टामोल, पेन किलर अगर छोटा मोटा ले रहे हैं तो चलो हमारे हिंदुस्तान में चलेगा। वो भी इसीलिए कि तब तक जब तक हमारे पास सफिशिएंट डॉक्टर पेशेंट रेशियो या डॉक्टर पॉपुलेशन नहीं हो जाता है। डॉक्टर बलविंदर, आपके पास भी आना चाहेंगे इस पर, अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें। सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर जो हम मेडिसिन खरीद लेते हैं, चलन है ये, व्हाट वुड यू से? देखिए, मैं इस केस के बारे में पहले तो इनको बता दूं कि इसमें बड़ा क्लियर है, लॉस ऑफ टेस्ट जो है एक बहुत ही रेयर सिम्टम है कोविड में। इनके केस में वो नहीं है कि ये कोरोना की वजह से है, पहला तो ये क्लियर होना चाहिए इनको। दूसरी चीज, इनको ये पता होना चाहिए इस पेशेंट को जो पूछ रहे हैं सवाल, देखिए ये आपको जब चेंज ऑफ वेदर होता है, बरसात आती है, तो उसमें हमारे यहाँ बहुत सारे इन्फेक्शन कॉमन हो जाते हैं। स्टमक इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। इन दिनों में टाइफाइड फीवर बहुत कॉमन है। थोड़ा सा इस पेशेंट को क्या करना चाहिए, इनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि इनका फीवर का पैटर्न भी कुछ ऐसा है, दवाई लेते हैं, उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है, तो इनको मोस्ट लाइकली हो सकता है कि स्टमक में इन्फेक्शन हो, टाइफाइड हो, या किसी और तरह का हो सकता है। अब इसके बाद ये सेल्फ मेडिकेशन जो है ना, देखिए ये बहुत ही डेंजरस होती है। मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि पैरासिटामोल एक जनरल पर्पस मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, आप उसको ले सकते हैं, परंतु पैरासिटामोल एक ही ध्यान रखिएगा, मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, पैरासिटामोल लेने के बाद अगर बुखार आपका फिर भी आता है तो इसका मतलब ये सब गंभीर मामला है, आप डॉक्टर के पास जाइएगा। अगर आपको माइल्ड इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होगी या जुकाम वगैरह होगा, वो पैरासिटामोल से बुखार उतर जाएगा, लेकिन वो बार बार नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। दोबारा से बुखार आ रहा है तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, आपको डेंगू फीवर हो सकता है, चिकनगुनिया का फीवर हो सकता है, कोई और भी फीवर हो सकता है। तो प्लीज गो टू डॉक्टर, प्लीज डोंट गो फॉर सेल्फ मेडिकेशन। और गला खराब होता है तो गरारे कर लीजिएगा। आपको कॉमन जो फीवर होता है ना, गला खराब हो जाता है या जैसे जुकाम सा लग जाता है, वो तो हर किसी को पता चल जाता है। एक ही प्रिंसिपल है, रूल ऑफ थंब है, पैरासिटामोल खाने के बाद आपका बुखार नहीं उतर रहा, प्लीज गो टू डॉक्टर। जी Okay, I think that's all we have time for. Thank you very much, Dr. Suryakant and Dr. Balwinder, for joining us, and thank you for all the information that you've given us, which has definitely helped all of us in understanding the situation that we are living with, and in dealing with it more confidently and in a better way. So the best thing is to follow the doctor's orders, the doctor's advice, and continue
to live your life. बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है, तो आप अपनी सुरक्षा करें। अगर आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो आप आसपास के सभी लोगों की भी सुरक्षा कर पाएंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, इसी संदेश के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।